This conference will now be recorded. Hello everybody, this is Praveen Sahu and today we are going to take Viva Mathematics of class 11th. Hope all of you are ready and let's start the session from Abhimanyu Dev Upadhyay. Abhimanyu, are you ready? Yes, sir. Okay, I am going to ask you few questions. देखिए ऐसा है कि probably 2 questions ही पूछ पाऊंगा आप लोगों को. ओरल आंसर या ओरल एक्सप्लेनेशन आपको पहले देना है. अगर आप दे सकते हैं तो फिर आप सॉल्व भी करेंगे उसको. तो ओरल एक्सप्लेनेशन पे 3 मार्क्स होगा, सॉल्विंग पे भी 3 मार्क्स होगा. इस तरह से आपको 12 पॉइंट्स के आसपास आपका एग्जाम होगा. दैट आई विल कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ इनटू 30. ठीक है. तो Yes. पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अभिमन्यु देव उपाध्याय से. अभिमन्यु, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर नोट कर लेंगे. क्या क्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्कोर नोट करते चलेंगे. This is a function for you, Abhimanyu, and I'm interested to know about the domain of the function. Can you explain कि domain कैसे निकालेंगे? Domain क्या होता है? पहले domain define करिए. So domain is all the possible values of x which will give a real answer to this function. So to find out the domain, यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर पे कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, बट अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो द आंसर इज नॉट अ रियल नंबर एंड हेंस हमको डिनोमिनेटर Can you solve and tell me what will be the domain of the function? Yes sir, yes sir. Please solve करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. जब तक आप 3 मिनट के अंदर ग्रुप में पोस्ट करेंगे आंसर कॉपी में लिख आप के. एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे. क्वेश्चन आप देख लीजिए और ये नोट कर लीजिए. विद इन 3 मिनट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. Okay, next person. I would like to invite Arno. May I invite you for the next question? Yes, sir. Okay, Arno, this is a function for you, and you are going to tell me first of all what is a mod function. What is a modulus function? So modulus function, whenever we put any expression, so when it comes out of the mod, so it becomes positive value. So if you want to remove mod, so we can put plus minus. Okay, I'm interested to know about the domain and range both of these given functions. So first of all, tell me what will be the domain of this function. So domain means that for what possible values of x, the f of x will be real, and range will be that what are the values where where domain is also real, like अभी इसका डोमेन where बताइए. domain फंक्शन का will डोमेन also be बताइए. real. देखिए what will be the domain of the given function. फंक्शन का डोमेन बताइए. So 1 second. सॉल्व नहीं कर रहे हैं So आपको. domain R हो जाएगा. गुड. डोमेन So आर R. होगा. रेंज क्या होगा देख के बताइए. What is the minimum value of mod of x minus 5? So 0. So what is the minimum value of the given expression? 2. Is it the minimum value? Is that the minimum value? तो सर अच्छा minimum value तो सर minus infinity हो जाएगा ना. ओके चलिए ठीक है. आप इसका रेंज क्या होगा वो मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप. ठीक है. Yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्रुव दत्ता, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके ध्रुव, आपके लिए क्वेश्चन है. The question for you is, चैप्टर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें है ना? Sir, sets, permutation and combination and probability. Okay. These three. Okay, ठीक है. So question for you.
आप बताने वाले हो ध्रुव दत्ता, द क्वेश्चन फॉर यू। Yes, sir. ये साइन दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे टोटल 6 पॉजिटिव साइन है और 6 नेगेटिव साइन है, करेक्ट? Yes, sir. You are going to arrange this positive and negative sign in a line such that no two sign occurs together. कोई भी दो नेगेटिव साइन आपस में साथ में नहीं होने चाहिए। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. The total number of ways in which 6 positive and negative signs can be arranged in a line such that no two negative signs occur together. बताइए कैसे निकालेंगे, एक्सप्लेन करिए। सर इसमें हम गैप मेथड यूज करेंगे सर। क्या तो हम मेथड? प्लस साइन सर बोलिए गैप मेथड बोलिए। सर। So like we will arrange the positive signs in such a way that there is a gap of 1 between all. So अगर हम 6 को अरेंज करेंगे तो हमारे पास इन टोटल 7 गैप्स मिलेंगे सर। तो इन 7 गैप्स में हमको जो नेगेटिव साइंस फिल करनी है, हम उसका हम ये परम्यूटेशन निकालेंगे सर। ओके, तो So or else we can also like sir shall I answer? Sir we नहीं, can gap also do like we can बोलिए सर बोलिए। हम नेगेटिव साइंस को सारे ग्रुप नेगेटिव साइंस के ग्रुप को हम एक यूनिट मान लेते हैं सर। तो फिर उसकी हमको निकालना है सर, मतलब उसका परम्यूटेशन फिर टोटल से माइनस कर देंगे सर। आपको क्वेश्चन समझ में आया था? यस सर। क्या सर था लाइक क्वेश्चन? सर पहले क्वेश्चन समझाइए, व्हाट इज द सिचुएशन? सर we are given 6 positive signs and 6 negative signs and we have to arrange these like the number of ways in which we can arrange these signs such that no two negative sign occur together. ओके, बताइए कैसे निकालेंगे? सर तो लाइक हम पॉजिटिव साइंस को हम लिखेंगे सर। तो हमको ऐसा करना है कि दो नेगेटिव साइंस के बीच में एक पॉजिटिव साइन है। ओके सर सो वी विल राइट सर, शैल आई यूज अ नोटबुक? आप बोलते जाइए, आप समझाते जाइए, मैं समझ रहा हूँ। यस सर। तो आपने बोल प्लस दिया ना? साइंस को हमको यस सर। सो 6 प्लस साइंस को हमको अरेंज करना है लाइक वो प्लस साइंस अगर डिफरेंट है so they will be arranged as in 6 factorial and then the negative signs sir we are given 7 places in between in between and at the terminals of all the positive signs arranged. So we need out of which we have to fill 6 places with negative signs sir. So we will get like 7p6. क्या बोला आंसर? सर 7p6. 7p क्यों? p क्यों आएगा? Sir, if negative signs are like they are distinct from each other, and if they are same, we will write 7p6. नहीं, गलत आंसर है आपका। Sir, and sir, also we are arranging no sir, तो permutation use करेंगे। नहीं, आप परमुटेशन यूज कर रहे हो, मैं समझ गया। Yes. बट अरेंज ही करना है, ऑब्वियसली अरेंज ही करना है। Yes, बट arrange ही करना है। तो यहाँ p क्यों लग रहा है? लेकिन क्यों जरूरत है p परमुटेशन की? क्यों जरूरत है भाई? Sir, सारे because here we पॉजिटिव are arranging. अरेंजिंग से क्या होता है? सारे साइन तो एक ही जैसे, क्या फर्क पड़ता है? किसी को भी कहीं भी रख दो। Yes, sir. Sir, चलिए, so कोई if बात they are identical, we will use combination. Okay, next question. Let me ask to Anushka. Are you no? Shubh, are you ready? Excuse me, sir. Yes, sir. बोलिए। सर मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ तो shall I नहीं solve? बेटा, पहले ओरल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ही सॉल्विंग है, ठीक है? आपको क्वेश्चन का सेंस पहले समझना है, फिर एक्सप्लेन करना है करेक्टली, ठीक है? ओके, शुभ रामपुरी, आर यू रेडी? Sir, Yes, I have sir. sent the answer. ओके, लेट मी चेक। Yes, व्हाट sir, I अबाउट have यू also अर्णव? sent. आपने भेज दिया? Yes, sir. ओके, correct. शुभ रामपुरी, आर यू देयर?
Yes, sir. ओके, जस्ट लेट मी चेक कि ये दोनों का आंसर क्या है। शुभ, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए। आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. समझाइए। सर हमारे पास 6 प्लस साइन है और 6 माइनस साइन है। हम लोग जस्ट इन्हें मिनट, जस्ट मिनट शुभ, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये किसका आंसर है? So मेरा ये कौन भेजा? ये आपका है और नौ, ये आपका है। तो अच्छा, और 9 को खुला हुआ है। ओके, अच्छा ये तुम्हारा का है अभिमन्यु? सर एक्चुअली वो एक एरर था, वो मैं रीसेंड किया हूँ आंसर। ये है आपका यस आंसर? सर, ये वाला। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभ, आपके लिए है सेम क्वेश्चन। प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। यस सर। तो हमारे पास 6 प्लस साइन और 6 माइनस साइन है। हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 माइनस साइन साथ में ना आए और कोई भी 2 प्लस साइन साथ में ना आए। ये नहीं बोला है, कोई भी 2 प्लस साइन के बारे में नहीं बोला है, ओनली 2 नेगेटिव साइन साथ में नहीं आने चाहिए, ये बोला है। यस सर। No two negative sign occur together. This is the situation. यस सर। एक्सप्लेन करेंगे आप? यस सर। सर पहले हम ये निकालेंगे कि जो प्लस साइंस है, मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इनको टोटली अरेंज कर सकते हैं हम। उसके बाद में हम वो नंबर निकालेंगे कि हम कितनी बार जो माइनस साइन है वो साथ में आ रहे हैं। और फिर जो टोटल नंबर आएगा उसमें से जो माइनस वाले जो साथ में आते हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हम लोग का कैसे आंसर मिल निकालेंगे जाएगा। कि 2 साइन माइनस साथ में आ रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे आप? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस में लेके कि पहले जो हम लोग प्लस साइन लेंगे तो पहले सारे प्लस रहेंगे, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट रहेगा माइनस का वो अलग अलग रहेगा। उसके बाद जब हम सब प्लसेस को एक सेट मान के बार बार अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। क्लियर नहीं है आपका एक्सप्लेनेशन, कैसे सारे प्लस को एक साथ रखेंगे आप ये बोल रहे हैं? तो जैसे हम सारे प्लस को एक यूनिट बना लेते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और जो 6 माइनस है वो अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गए, तो टोटल में 7 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। 7 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन भी है, टोटल आपके पास 6 नेगेटिव साइन है। सबको Yes, अरेंज sir. करना है, 6 पॉजिटिव साइन को भी अरेंज करना है, 6 नेगेटिव साइन को भी अरेंज करना है, और ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 नेगेटिव साइन जो है वो साथ में नहीं रहना चाहिए। ये कितने तरीके से करना है, ये है क्वेश्चन। Yes, sir. प्लीज टेल, डोंट सॉल्व, एक्सप्लेन इट, हाउ टू डू। आइडिया क्या है इसके पीछे, कंसेप्ट क्या यूज करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अनुष्का से। अनुष्का, आर यू रेडी? Yes, sir. या अनुष्का, सेम क्वेश्चन फॉर यू। Yes, sir. Sir, this sir इस फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन ऑल में ये बोल रहा एक्सप्लेन है द कि सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन? yes sir, yes sir. सर 6 प्लस साइन है और 6 माइनस साइन है। हम लोग को इनमें से माइनस साइन, 2 माइनस साइन साथ में नहीं आने चाहिए, और हम लोग को इसको ऐसे अरेंज करना है कि 2 माइनस साइन साथ में नहीं आने चाहिए। तो सर तो इसमें 12 पोजीशंस हो गई सर। मतलब 12 पोजीशंस आर अवेलेबल, और उसमें से हम लोग वो वाली पोजीशंस हटा देंगे जिसमें माइनस साइंस 2 बार साथ में आ रही है। ठीक है, तो पहले बताइए टोटल कितने बनेंगे? सर टोटल अरेंजमेंट विदाउट रेस्ट्रिक्शन। सर 12C2। 12C2 गलत।
चलिए सेम क्वेश्चन टू यू नीति. Yes, sir. So, question also I will explain. या एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. सर इसमें ये है कि दो साइंस है, एक प्लस और माइनस, दोनों 6 है. इसमें ऐसा है कि दो नेगेटिव साइंस एक साथ नहीं आ सकते हैं. तो सर वी कैन यूज स्टार एंड बार मेथड. Okay, what is the star and bar method? How we will do that? Sir, in this, इसमें sir it is helps in combination and permutation का एक सब पार्ट है. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? स्टार एंड बार मेथड को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? सर n+1 और k-1 करके इसका थ्योरम है. आई डोंट वांट टू नो फार्मूला. आई डोंट वांट टू लिसन फार्मूला. ये पर्टिकुलर सिचुएशन आप कैसे सॉल्व करेंगे? आई डोंट वांट फार्मूला. सर सर अरेंज करके. अरेंज ही तो करना है, यही तो क्वेश्चन है. ऐसे अरेंज करना है कि नो टू नेगेटिव साइंस ऑकर टुगेदर. सर बोलिए बोलिए. अभिमन्यु, नेक्स्ट टर्न टू यू. The same question. जी हाँ. Yes sir. सर तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव साइंस है एंड हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी दो नेगेटिव साइन साथ में नहीं आ सकते. मींस एवरी नेगेटिव साइन शुड बी सेपरेटेड. यहाँ पे पॉजिटिव साइन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो साथ में आ सकते हैं. तो हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि सारे पॉजिटिव साइंस को ऐसे प्लेस कर देंगे और उनके बीच गैप्स बना देंगे. जो गैप मेथड बताया है, 7 गैप्स आएंगे. 7 गैप्स में हमको 6 माइनस साइन अरेंज करने हैं. अब क्योंकि ये माइनस साइन डिस्टिंक्ट नहीं है तो यहाँ पे मतलब ये माइनस साइन 6 के 6 तो सेम ही है, तो यहाँ पे हम परम्यूट नहीं करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ 7c6 सेलेक्ट करके वही हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए, वेरी गुड, थैंक यू. सॉल्व करके भेजिए कॉपी में. यस सर. Next question goes to Arno. Are you ready? Yes, sir. Okay. The question for you, Arno, you tell me which chapter, from which chapter I should ask? Sir, कोई भी. Any chapter. Why not probability? Okay, sir. Okay. So you tell me what is mutually exclusive events. So mutually exclusive events are events which have like they have nothing in common, those two events, so their intersection will be 5. What are mutually exhaustive events? Mutually exhaustive events. So mutually exhaustive events में, so that means that one will be inside another, so their intersection, like for example A and B, so their intersection will be A. नहीं, ऐसा नहीं होता एग्जॉस्टिव में. चलिए आपको कुछ और पूछते हैं. चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक वर्ड दे रहा हूं. देयर इज अ वर्ड फॉर यू. देयर इज अ लेटर अट्रैक्शन. Attraction. This is the spelling of the word attraction. Okay. And you have to find the probability that all the T's occur together. कैसे निकालेंगे बताइए? All T's occur together. Probability निकालनी सबसे पहले yes, सबसे पहले तो number of S निकालेंगे. तो number of S निकालने के लिए क्या बोलते हैं,
ये वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि 3 t और 2 a है, तो उससे नंबर ऑफ s निकल जाएगा। फिर सर उसके बाद किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? ये तो आपने टोटल निकाल लिया, सैंपल स्पेस निकाल लिया, टोटल आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, टीज ऑकर टुगेदर। हाँ यस सर, तो फिर उसमें t को एक एंटिटी मानेंगे, तो फिर ये एक एंटिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेंगे, तो दैट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज अभी भी 2 a है हमारे पास, तो उससे नंबर ऑफ इवेंट्स निकल जाएंगे, तो नंबर ऑफ e बाय नंबर ऑफ s करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितने होंगे? टीज ऑकर टुगेदर कितने होंगे? सर टीज ऑकर टुगेदर के लिए अपन उसको एक एंटिटी मान लेंगे, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर एक सेकेंड, ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। 8 क्यों? सर क्योंकि 8 एंटिटीज है ना। 8 एंटिटीज कैसे? सर 1 2, सर अगर सारी टीज को एक मान लेंगे, एक एलिमेंट, क्योंकि उन तीनों को साथ में अकर करना है, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी निकाल के भेजिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभ जिंद नहीं ध्रुव, इट्स योर टर्न ध्रुव। यस सर। ओके ध्रुव, ध्रुव क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अभी। यू टेल मी कि जस्ट मिनट, बाकी लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? किसके पहले जो था वो? मैंने आंसर भेज दिया। What about Arnav? Are you solving? यस, बस एक सेकंड का क्वेश्चन किसी को मिला है? ठीक है, चलिए ध्रुव दत्ता, आर यू रेडी? यस सर। क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं और साथ में लिख भी रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। A team of medical students, can you see the screen? Yes sir. A team of medical students going their internship have to assist during surgeries at a city hospital. Now question is that this is the situation. Probability of surgeries rated as very complex probability दिया हुआ है इसका 0.15, कॉम्प्लेक्स सर्जरी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.20, रूटीन सर्जरी की प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है 0.31 एंड सिंपल सर्जरी की प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है 0.26 एंड लिखा है वेरी सिंपल सर्जरी की प्रोबेबिलिटी भी लिखा हुआ है आपके लिए, दैट इज 0.08। ये इतने कैटेगरी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, ये सिचुएशन है, क्वेश्चन ये है कि find the probabilities that a particular surgery will be rated neither very complex nor very simple. Yes sir.
Sir, neither very complex and neither very complex nor very simple. yes sir. कैसे निकालेंगे वो बताइए. Sir, यहाँ पे first we will check that probabilities of all the events is is it summing up to 1? So sir यहाँ पे हम check करेंगे. तो sir सबकी probability का sum 1 आ रहा है? sir वही check कर रहा हूँ. Yes sir, आ रहा है 1. So this event is true and is possible. Sir, so यहाँ पे पूछा है कि neither very complex nor very simple. So यहाँ पे हमको हम VC intersection इनको मैं इवेंट का नाम दे दूं, ठीक है. ये A B C D E ऐसे हैं. अभी इनके टर्म्स में बताइए. यस सर. सर यहाँ पे हमको A इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट लेना है. A इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट लेना है. यस सर. आप ये बोलना चाह रहे हैं A इंटरसेक्शन E प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे. आप ये बोलना चाह रहे हैं? यस सर. इज इट योर आंसर? सर यहाँ पे neither very yes sir. Is it your answer? Yes sir. It's a wrong answer. सर बट यहाँ पे हम मतलब इंटरसेक्शन ही लेंगे ना, क्योंकि एंड है इधर. क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल. यस सर, नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट वेरी सिंपल. वेरी कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे सर. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या? एग्जैक्टली बोलिए क्या? सर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको. Yes, so we will add 0.20, 0.31 and 0.26 upon the total, it is 1 sum. Is it your answer? Yes sir. ये आंसर क्यों हुआ? Sir 0.20 plus 0.31 plus 0.26 upon 1. सर क्योंकि सबका सम 1 आ रहा है. ये आंसर क्यों हुआ ये बताइए. आपने ऐसा क्यों बोला कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट लेना है? ये क्यों बोला आपने? सर यहाँ पे नीदर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी वो ना तो कॉम्प्लेक्स हो और ना ही सिंपल हो, वेरी सिंपल. ये आप सॉल्व कैसे करेंगे बताइए. ये आगे सॉल्व कैसे होगा? सर हमको पहले A यूनियन E निकालना है. सो यूनियन में हम प्रोबेबिलिटीज ऐड करते हैं और इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं. सर तो यूनियन में ऐड करेंगे हम 0.15 प्लस 0.08 हम ऐड करेंगे. सर देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1. 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज 1. आप 1 से इन दोनों के सम को माइनस करना चाह रहे हो? आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर. Yes, ओके ठीक है गुड, राइट आंसर. बट आपके मार्क्स कट रहे हैं, इसको सॉल्व करके भेजिए आप. यस सर. ठीक है. सो मैंने आंसर भेज दिया. आपने आंसर भेज दिया और नो? इसको आप पूरा सॉल्व करिए और सॉल्व करके भेजिए ध्रुव दत्ता. यस सर. चलिए देखते हैं क्या क्या भेजा है आपने. लेट्स सी. ये आपका आंसर है. ये किसने भेजा था ये वाला आंसर? मैंने भेजा. ये आंसर भेजा है अभिमन्यु देव उपाध्याय ने. तो आपने इसमें 7-6 क्यों लगाया? 7P क्यों नहीं लगाया? सर क्योंकि सर वो एक्सप्लेन किया है कि नेक्स्ट फोटो में जैसे दिखाएंगे सारे नेगेटिव साइन सेम है, तो हम जैसे एक को दूसरे की जगह रखे तो भी तो आंसर सेम ही आना है, तो हम लोग परम्यूट कर ही क्यों रहे हैं.
तो हम सीधा Okay. सिर्फ सेलेक्ट कर देंगे। ये किसका आंसर है? सर मेरा। ये आपने 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को डिवाइड किया टोटल से, एट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ओके, और कोई किसी ने आंसर भेजा है? चलिए ध्रुव आप सॉल्व करके भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट किसका टर्न है? मेरा। शुभ। यस सर। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइए, एक फंक्शन लिखा हुआ है 1/√3 - x। आप मुझे बताइए √x का रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है? √x एक फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज बताएंगे। शुभ, √x इज द फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज बताइए। सर √x का डोमेन होता है +r, मतलब r+, 0 से इंफिनिटी हो सकता है। 0 से इंफिनिटी, ये क्या है, डोमेन है कि रेंज है? सर डोमेन है। और रेंज क्या होगा? सर रेंज भी 0 से इंफिनिटी होएगा। क्यों? सर क्योंकि जो फंक्शन है रूट का वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है, क्योंकि वो यहाँ पे हम एक फंक्शन जैसे यूज कर रहे हैं, और किसी भी रियल नंबर का रूट रहेगा वो रियल ही आता है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन दिख रहा है इसका डोमेन क्या होगा? सर इसका डोमेन होगा हम्म। 4 इंक्लूडेड से लेके सर 1 मिनट। तो इसका डोमेन होगा x इज लेस देन इक्वल टू 3। सर लेस देन 3, नॉट इक्वल टू। x इज लेस देन 3 बोल रहे हो आप? यस सर। ये आपने क्यों बोला? सर क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है मेन, जो 1/√3 - x, तो ये डिनोमिनेटर में जो √3 - x है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, या लेस देन अच्छा। 0 बट नॉट 0। ठीक है, ये तो डोमेन ठीक है। इसका रेंज निकालना होता, कैसे निकालते? यस सर, 1 मिनट। बताइए, बोल के बताइए कैसे निकालते? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मैंने भेज दिया। ओके, हाँ शुभ आप बताइए। सर इसका रेंज आएगा जब हम सबसे x की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 3 से कम हो। अगर हम 3 भी पुट करें, 3 से कम पुट करेंगे, जैसे हम 2 पुट कर सकते हैं या 2.5 पुट कर सकते हैं, तो उससे हमें उसकी लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि रेंज कैसे निकालेंगे? सर निकाल के मतलब सॉल्व करके बता सकता नहीं, हूँ। प्रोसेस बताइए कैसे निकाल सकते हैं, क्या मेथड होगा? सर रेंज निकालने का कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो 3 से कम हो, और फिर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब फिर जो वैल्यू आएगी वो सबसे उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि वो 1/, में दिखा हुआ है। आप बताइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की? यस सर। बताइए। सर 1। मिनिमम वैल्यू 1 आएगी? यस सर। सर मिनिमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। इसकी वैल्यू 0 आ सकती है क्या इस एक्सप्रेशन की? नो सर। नहीं आ सकता? नो सर। क्यों? सर क्योंकि 0 आने के लिए ऊपर कांस्टेंट 1 है, और 0 आ नहीं सकता क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आंसर इन्फिनिटी चले जाता है। ओके ठीक है, तो आप इसका रेंज भी निकाल के बताइए और डोमेन भी निकाल के सॉल्व करके भेजिए कॉपी में। यस सर। अनुष्का दास, आर यू रेडी? यस सर, यस सर। ठीक है, अनुष्का आपसे पूछते हैं, इसके पहले आपसे कौन से चैप्टर का पूछे थे? प्रोबेबिलिटी का पूछे सर थे? सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का पूछे थे। ओके,
चलिए ठीक है, आप बताइए कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा हुआ है? नो सर। नहीं पढ़ा है सर मैंने अरे सेकंड चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है। तो अभी आप लोगों से सेट से पूछ रहे थे कि रिलेशन फंक्शन से पूछ रहे थे? सर रिलेशन फंक्शंस। तो बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? सेट से पूछना था ना? यस सर। तो बताना चाहिए था ना भाई। किसने किसने गलत आंसर दिया है वैसे देखें जरा। सेट से किसी ने गलत आंसर दिया है क्या? रिलेशन से? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सेट से पूछते हैं आपसे। यस सर। आप बताएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स का कंसेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का? सर नंबर ऑफ सबसेट वो सर पावर सेट इज ऑल द सबसेट्स। सर नंबर ऑफ सबसेट उतने होते हैं सर, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका पावर टू द 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बोलना चाह रहे हो? सर 1 सेकेंड सर। सर पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सर मैं तो जब हम लोग पावर सेट नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ रहा हूँ। टोटल नंबर सर ऑफ सब। सर जब जब सेट ए है उसमें 2 3 4 हैं, और फिर एक एलिमेंट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो सर ए विल बी द सबसेट ऑफ बी because all the elements of A are also in B. कितने सबसेट्स बनेंगे वो बताइए। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए? जैसे ये एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5, कितने सबसेट्स बनेंगे Yes, इसके? सर इसके पावर सेट्स बनेंगे सर। नहीं, सबसेट्स कितने बनेंगे इस सेट के, ये पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी सबसेट्स? सर 2 to the power माइक 5. बंद करके आप माइक बंद करके बात करेंगे तो किसी को सुनाई कैसे देगा? सर 2 to the power 5. ओके, तो इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट्स। नीति प्लीज अपीयर। Yes, sir. प्रॉपर तो सर सबसेट्स इसको सॉल्व करके भेजना है क्या? सॉल्व। Sir, आप सुन क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स देयर? अनुष्का, the same question, right? माइक ऑन रखिए। सर 2 to the power 4 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। 2 to the power 4 कैसे होंगे? सर क्योंकि सर आई डोंट नो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे बताइए। Sir, I will tell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति, सॉल्व द सॉरी आंसर द सेम क्वेश्चन। Sir, the number of sets will be 2 to the power 5 and proper sets will be 2 to the power 5 minus 1. क्यों? सर एक ऐसा सेट होता है जो एक सेट को माइनस करना पड़ेगा तब फिर सारे प्रॉपर सेट्स आ जाएंगे। क्या होता है प्रॉपर repeat जो बताइए। Sir, when there is an element n, so it will be given as 2 to the power n minus 1. प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो बताइए। Sir, ऐसे सेट, sir, a proper subset of a set
Sir, a subset which is not equal to A. नॉट इक्वल टू ए। इनके लिस्ट बनाइए दोनों के दोनों और भेजिए कितने सबसेट बज रहे हैं हो रहे हैं, और सारे के सारे सबसेट लिख के भेजिए कॉपी में, ठीक है? Yes, आंसर sir. राइट ऑल द सबसेट्स। Yes, sir. अनुष्का एंड नीति Yes, sir. लिख के Yes, भेजिए, sir. वेट कर रहे हैं आपके। बाकी लोग स्कोर नोट करेंगे। शुभ, आपका आंसर नहीं आया अभी तक से, क्वेश्चन Yes, sir, चेंज कर भेज दें रहा आपके हूँ। लिए? क्वेश्चन तो नहीं चेंज करना है ना? चलिए, आपने डोमेन No, का sir. आंसर दे दिया था। हु इज दिस अमन? अमन कौन है? हु इज अमन? यस, बताइए। मार्क्स स्कोर नोट कर लिया सब लोगों ने? Yes, sir. सबसेट्स लिख के भेज दें, स्कोर नोट करिए जल्दी से सारे लोग, और टाइप करिए कितने कितने हो रहे हैं आउट ऑफ 12। टाइम हो रहा है क्लास का। सर मेरा आपने आखिरी क्वेश्चन का नहीं दिया है मार्क्स। जल्दी से आप लोग आउट ऑफ 12 कितना आ रहा है टाइप करके भेजिए सबका इंडिविजुअल। तो मेरे को एक डाउट था पूछिए। सर, वो जो अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था उसका तो मैंने पूरा सही एक्सप्लेनेशन दिया था ना? तो आपको मार्क्स मिला है ना उसमें? सर आपने 2 दिया है। कहाँ? सर ये नीचे, हाँ ये रहा। इस पे 2 क्यों मिला आपको? ये तो 3 मिलेगा ना, आपने आंसर तो दिया था ना। हाँ सर, हाँ सर, वो बस वो ऊपर में वो एग्जॉस्टिव वाली गलती किया था। हाँ, और बाकी ठीक है, बाकी लोग अपना स्कोर चेक करिए और टाइप करिए। Niti and Anushka, please send your answers also. Shubh Yes, sir, 6, 2, 1. Dhruv 5, Abhimanyu 12, Arnav 11, Anushka 1, 1 नहीं, 1 + 3 4। क्या आप इसके सबसेट्स निकाल लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Anushka, change the score. It is not 1, it is 4 out of 12. नीति, आपका भी टाइप करके भेजिए।